Hello everyone, this is class 6 biology lesson number 4, digestive system in humans, part 1 and 2 already uploaded. This is part 3. In this part we will discuss about lot of new things like tooth cavity, tongue, structure of tooth. All these things we are going to discuss here, but in a previous video we have discussed different type of teeth in the human, that are incisor, canine, premolars and molars. सो यहाँ बेटा एज अ स्मॉल चाइल्ड यू हैड 20 टेम्पररी टीथ, मीन्स जब आप बच्चे होते हो आप में 20 टेम्पररी टीथ होते हैं, दैट आर 8 इंसीजर, 4 कैनाइन एंड 8 प्रीमोलर्स. मीन्स अ स्मॉल चाइल्ड डजंट हैव मोलर्स. The molars appear as permanent teeth later in the life. When permanent teeth come, then molars appear. If you count your teeth now, you will find that there are 28 teeth, 8 incisor, 4 canine, 3 premolars and 8 molars. On the other hand, your parents, as they are adult, they must have 32 teeth. Not must, they should have, because it's not compulsory that everybody have 32 teeth. ज़रूरी नहीं है हर एक में 32 ही होंगे, अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है. 28 भी हो सकते हैं, किसी में 30, 31 हो सकते हैं. बहुत रेयर मैंने सुना है कि लोग होते हैं जिनमें 32 टीथ होते हैं. देर आर 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर. बेटा ये काउंटिंग आपने याद रखनी है, बिकॉज इट कैन बी क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम दैट कि जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें कितने आपके पास जो है चाइल्ड के अंदर कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं. Next, the topic that we have to discuss, that structure of our tooth. Here the structure of our tooth is given, beta. Let's start reading. The general structure of all type of teeth is the same. General structure is always same. Each tooth consists of two different parts, that one is crown and second is root. Root is this one which is inside, right? जो हमारा दांत अंदर वाला पार्ट होता है दांत का, जो लाइक अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट, एंड द अपर पार्ट दिस इज कॉल्ड क्राउन. सेपरेटेड बाय अ नैरो नेक, they are separated by a neck, right? And then the crown is the upper visible part of the tooth. This is the visible part of the tooth, this is called crown. And the root in the lower part, that is embedded in a cup like socket of the jawbone, right? कि जो जॉबोन के अंदर होता है कप लाइक स्ट्रक्चर कुछ हमारा, अगर आपका दांत निकलता है तो यू कैन लाइक सी देयर दैट कि वहाँ पे एक होल सा होता है ऐसा, इन विच टूथ इज एम्बेडेड, right? So this is the part which is embedded inside the cup like jawbone, that part is called root, and upper visible part is called crown. Neck is surrounded by a gum, right? जो इसकी neck होती है that is surrounded by gums होते हैं इधर उधर. The crown is covered with enamel. Okay, now the visible, he is talking about the visible part, that this whole crown, he is going to talk about this, that the outer part which is visible, that is white in color, that is called enamel. This is enamel. And beta, you know that this is the hardest substance in our body. हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, दैट इज एनामल. बीनीथ एनामल मीन्स बिहाइंड द एनामल, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन. दैट इज कॉल्ड डेंटाइन विच फॉर्म्स अ बल्क ऑफ द टूथ. मीन्स टूथ का जो मेजर पार्ट होता है, बल्क मीन्स मेजर पार्ट, दैट इज मेड ऑफ डेंटाइन. And next is beneath the dentine, means under the dentine, means behind the dentine, there is a pulp cavity which contain nerves and blood vessels. अब nerves और blood vessels कहाँ पे होती हैं? That is inside the pulp cavity. यहाँ पे होती हैं वो सारी nerves, blood vessels. यहाँ से ब्लड निकलता है, अगर आपका दांत टूटता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लड निकलता है तो यहाँ से निकलता है, फ्रॉम द पल्प कैविटी. Getting further here, beta, some about the tooth decay they have given, that most common tooth problem among the people is tooth decay. Everybody knows कि जो आपका teeth जो है यहाँ से black सा हो जाता है, that is tooth decay. ठीक.
When small piece of food get trapped between the teeth, bacteria act upon them. अगर आपके दांतों में कहीं पे भी कोई शुगर का टुकड़ा या फिर फूड का टुकड़ा रह जाता है तो मुंह में कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि उसको डिके करते हैं और करते करते क्या है वहाँ पे एक ब्लैक सा सब्सटेंस बना देते हैं. एज अ रिजल्ट एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अगर यहाँ पे फूड है बैक्टीरिया उसको ट्रैप करेगा, ठीक, लाइक उसको डिके करेगा तो एक एसिड प्रोड्यूस करेगा वो विच स्लोली डैमेज द टीथ. वो एसिड क्या करता है, डैमेज कर देता है टीथ को. किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण. और हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि हम ब्रश नहीं करते प्रॉपरली टीथ या सॉरी फूड या कोई भी और आइटम स्वीट्स वगैरह वो जो टीथ में रह जाती हैं उसके कारण एसिड प्रोड्यूस होता है और टूथ डिके हो जाता है. और डेंटल क्राइज many a time a mixture of saliva, food and bacteria begins to form over the tooth with half an hour of heating. Okay, then he said कि बहुत बार ऐसा होता है कि मिक्सचर ऑफ सलाइवा इज स्पिट, राइट. जो लिक्विड आपके मुंह के अंदर होता है अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका मुंह वेट होगा, दैट इज कॉल्ड सलाइवा. फूड एंड बैक्टीरिया बिगेंस टू फॉर्म ओवर द, हमारे टीथ के ऊपर एक लाइक डेंटल प्लाक सा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, एक सब्सटेंस दांतों के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है. कुछ लोग जो दांतों की केयर नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल प्लाक. द बैक्टीरिया इन द डेंटल प्लाक, ये क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है जब डेंटल प्लाक फॉर्म हो जाता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, तो आपको बर्निंग सी फॉर्म होती है, इन्फेक्शन होती है, दांतों में दर्द होता है, डिके ऑफ टीथ होना शुरू हो जाता है. एंड इन द रिजल्ट क्या होता है कि बैड ब्रीथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. कुछ लोग होते हैं, हम ऐसे लोगों को मिलते हैं बेटा कि जिनको हम बोलते हैं कि इसके लाइक बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इसके मुंह से, दैट इज़ बैड ब्रीथ. वो किसके कारण होती है, डेंटल प्लाक के कारण. कि अगर आप दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं करते हो खाना खाने के बाद, देन हमारे मुंह से क्या होता है कि बैड ब्रीथ जो है स्टार्ट हो जाती है आनी, एंड पेन भी होता है. सो द हार्डन्ड प्लाक, अगर बहुत ज़्यादा प्लाक आपके दांतों पे आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टार्टर. राइट, नेक्स्ट जो इसी के अंदर हमने कवर करना है टॉपिक, दैट इज़ द टंग. टंग क्या है, माउथ कैविटी ऑल्सो कंटेन अ थिक मस्कुलर ऑर्गन. हमारे मुंह के अंदर मस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट इज़ कॉल्ड टंग. टंग इज़ कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन. टंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, विच कीप इट मॉइस्ट ऑल द टाइम. अगर आप अभी फील करो आपका मुंह अभी भी वेट है, टंग अभी भी वेट है, राइट. सो इट हैज़ टेस्ट वर्ड्स इवन. इस एक तो चीज़ आ गई कि टंग क्या है, म्यूकस के साथ मेम्ब्रेन के साथ कवर होती है जो कि इसको मॉइस्ट रखती है. सेकंड थिंग, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट वर्ड्स होते हैं दैट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द टेस्ट, जिसके साथ हमें अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं कि कोई चीज़ स्वीट है, कोई चीज़ सॉल्टी है, कोई कुछ लाइक अलग अलग टेस्ट हमें इसके साथ पता चलते हैं. दैट आर फॉर द टेस्ट वर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट आर ऑन द टंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग द फूड. इवन जब आप खाना खाते हो, खाने को एक साइड से दूसरी साइड मूव कराने में टंग हेल्प करती है. दैट्स ऑल अबाउट. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा.